The phone is of which brand? OnePlus. Samsung. OnePlus. Okay. So, OnePlus. what I'm trying to tell through this picture, is anyone able to decode? Achha, can you sense any kind of difference? Forget about the company. I know mobile phone is not such a new product, so as Metro, but these are two different kind of products, right? So they came in the market, they were new in their type. Like when Metro was introduced in India, it was a new in its kind. And when smartphone also came, it was a new of its kind, right? So I'm trying to ask, let's say when the pricing of these two category of product or these two type of product is introduced, can you sense any kind of difference in the pricing of these two products? Anything? Please think. Please think. The other one is quite expensive in Yes. thousands and all, while the Metro card is less than 100, 200 rupees. नहीं कार्ड तो आपकी मर्जी है, आप टोकन भी ले सकते हैं, Travel, but है traveling ना, is, you know. है ना, लेकिन this is the one difference, right? But I'm looking for any other strategy. Can you understand the strategy? What is the price? Okay, whatever is the price, but can you feel some kind of, can you understand some kind of strategy behind the pricing over the period of time? क्या होता है? Ma'am, OnePlus has tried to build a market for elite class, and they have tried to establish it as a status symbol, while Metro is just for general use, so that all the people can avail the facilities of. Okay. Forget about OnePlus thing. Think it is just a mobile phone. Okay. It's also product versus a service as well, that they're Huh? providing a product which can be used for a longer period of time, while this one is a service that you use occasionally but not like for a long period, like Okay, the okay, amount. okay. Yeah, one difference is there. This is a product in the term of it is a goods, or that is a service. Okay, Chali, I'll help you out. Can you read these two lines, 2 points? Market skimming price and market penetration price. Have you heard about these two terms? Okay, let me help you once more. Have you felt that जब phone हम नया आता है, उसका prices is something different, and when it is 1 year old or maybe 2 year old, what happens to the prices of mobile phones? It increases or it decreases? It decreases. Okay. Have you felt that over the period of time, Metro prices has decreases? No, ma'am, they have increased. They are increasing, but nominal price पे inflation वाला, but there is no much prices change in the Metro price. Okay. Metro फिर इतनी कम टिकट में how can they survive? क्या मॉडल लगता है आपको? वॉल्यूम पे खेलते हैं ना मेट्रो वाले. मेट्रो इज प्रॉफिटेबिलिटी जो मेट्रो का है वो वॉल्यूम पे है, कितने राइडर बढ़ते हैं. हैव यू अंडरस्टूड? जब हम कार्ड बनवाते हैं 100, 200, 500 रुपए का, व्हाई दे गिव सम काइंड ऑफ डिस्काउंट? थिंक फ्रॉम ए कॉमर्स स्टूडेंट पर्सपेक्टिव. जब मैं 500 रुपए का कार्ड बनवा रही हूँ, 100 रुपीज का कार्ड बनवा रही हूँ, व्हाई दे ऑफर दैट काइंड ऑफ डिस्काउंट ऑन द दिस काइंड ऑफ. You use it continuously, while with the token you'll only use it once. No, but so more or less you have reached there, but I am looking for some specific words. Ma'am, quantity basically. As we increase the quantity. Ma'am, economies of scale. Economies of scale, और थोड़ा सा और सोचो. You are almost there. अच्छा चलिए, लेट मी हेल्प यू मोर. जब आप 500 रुपीज का टोकन बनवाते हो या कार्ड बनवाते हो, फॉर एग्जांपल मी, आई स्टे नियर बाय टू कॉलेज, सो आई डोंट यूज मेट्रो फॉर डेली कम्यूटिंग. आई यूज मेट्रो जनरली व्हेन आई हैव टू विजिट द नॉर्थ कैंपस और मे बी एनी अदर प्लेस. Generally I use metro whenever I have to go for paper checking or any other college which is not in south, or maybe or very any university related work I have to go. But I keep 500, maybe generally 500 rupees card in my pocket.
So that means my 500 rupees are with the metro, right? Let's say, or maybe 400. Let's say I have used 100 rupees, or maybe 40 rupees I have used. Okay, so metro is earning a kind of interest also. They are in advance having my money. They can use my money in whatever way they want because I have given them in advance. Business sense देखो, अभी मैंने उनकी सर्विसेज यूज नहीं की हैं, but they are, I have still paid them. Are you getting it? To attract that, वो डिस्काउंट दे देते हैं. और रीजन क्या देते हैं? आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. Are you getting it? बिजनेस सेंस समझ आ रहा है आपको? मेरे 500 रुपए फंस गए ना, इन एनी केस मेरे 500 रुपए वहां फंसे हुए हैं ना, फंसे इन द सेंस आई कैन विड्रॉ देम, नो डाउट अबाउट दैट, मैं ले सकती हूँ, कार्ड सरेंडर कर सकती हूँ. बट लेट से मेरे को, मेरा ट्रैवलिंग बहुत कम है, मैं साल में मेरा मतलब 6 मंथ्स में 500 का यूज हो रहा है, या कुछ लोग होंगे जिसका 1 ईयर में 500 रुपीज यूज होगा. बट फॉर दोस 1 ईयर मेट्रो इज कीपिंग दोस मनी, दैट मनी. वाइल टोकन में तो जितना उसने किया उतना तभी की तभी हो गया, तो मनी एडवांस में नहीं मिला. तो इसीलिए एक मॉडल, ये तो मैं बता रही हूँ, बट मॉडल से इसका लेना देना नहीं है. मॉडल का मतलब यहाँ पर ये था, जब हम अपनी पीपीटी पे रिटर्न हो, कि यू नो जो मेट्रो है वो वॉल्यूम पे प्ले करती है, और जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये तो मोबाइल फोन है, आप किसी और टेक्नोलॉजी की भी बात कर लें, ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं, स्किमिंग द क्रीम करते हैं. ये फैशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो स्किमिंग द क्रीम. कभी ऐसे यूज यू नो एक्सपीरियंस किए कि कोई नई तरह की ड्रेस आती है जब, राइट, कोई भी नए स्टाइल की जीन्स आई, कोई भी नए स्टाइल की ड्रेस मार्केट में शुरू हुई, इनिशियली उसके प्राइसेस ज्यादा होते हैं और उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, उसके बाद प्राइसेस कम होने लगते हैं, इतना कम होने लग जाता है कि वो आपको रोड साइड पे भी मिलना लग जाता है वो डिजाइन. कंपैरिजन नहीं कर रही, पर दे ट्राई टू कॉपी दैट डिजाइन. You got it? So, जब आपके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको इनिशियल लेवल पे ही सारा का सारा आपको प्रॉफिट खींचना होता है, बिकॉज लेटर स्टेज पे आपके इमिटेंट्स आ जाएंगे, आपके प्रोडक्ट की उस तरीके से कॉस्ट यू नो नहीं रहेगी, मतलब आप इतना प्रॉफिटेबल उस पर नहीं बेच पाएंगे, इतने मार्जिन पे आप प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों की स्ट्रेटेजी में क्या फर्क है? वाइल जब हम दूसरे प्रोडक्ट की बात बोलते हैं, पेनिट्रेशन की बोलते हैं, तो ये इनिशियल लेवल पे आपके प्राइसेस कम होते हैं, और लॉन्ग रन में यू नो जब लोग ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं उस प्रोडक्ट को, वहां पर फिर वो उसको प्रॉफिट खींचना शुरू करते हैं. आर यू गेटिंग इट? यस मैम, हम यूज भी करना शुरू कर देते हैं, उसके हैबिचुअल भी हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा पे करना ही पड़ेगा. Exactly. आज के टाइम में अगर गूगल पे हो जाए और अगर हमारे पास कोई फ्री सर्च इंजन इतना अच्छा ना हो, वी डोंट माइंड पेइंग सम अमाउंट, मे बी नेग्लिजिबल अमाउंट, पर गूगल कभी भी बहुत ज्यादा नहीं मांगेगी, अगर मांगेगी भी, बिकॉज दे नो कि इंटरनेट में कंपटीशन हो सकता है, राइट? तो नेग्लिजिबल अमाउंट होगा, बहुत कम अमाउंट होगा, जो हम पर पर्सन पे देखेंगे शायद नहीं होगा, राइट? इतना ज्यादा टैक्सिंग. तो वो किसमें प्ले करते हैं? वॉल्यूम पे प्ले करते हैं. जो गूगल है हमें तो फ्री कर रहा है, बट व्हाई पीपल एडवर्टाइज ऑन गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? आपने देखा है, बिकॉज वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है गूगल यूजर का, तो वो वहां पर उस चीज को यूटिलाइज करते हैं. सो वन हैज टू सी व्हाइल सेटिंग देयर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी दैट हमारा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है. आज ही मेट्रो नई आई है, पीपल आर यूजिंग अदर थिंग, और मेट्रो इज नॉट की ऐसी चीज थी कि कल परसों में इसका कोई ऑल्टरनेटिव खड़ा हो जाएगा. इट्स नॉट दैट, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. तो वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग करते हैं कि धीरे 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 दे ट्राई टू कवर देयर कोस्ट, और 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद दे स्टार्ट अर्निंग. अभी अमेजोन का मॉडल आप देखें, कितनों को पता है कि अमेजोन काफी साल तक लॉस पे रहा था, अभी भी लॉस पे है नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट हैव लेटेस्ट फिगर, बट इनिशियली 3-4 साल, 5 साल जो इंडिया में एंटर किया था, इट वाज ऑन लॉसेस, रनिंग ऑन लॉसेस. क्यों? क्योंकि उसने कंपैटिटिव प्राइस ऑफर करके अपनी मार्केट खड़ी की. अभी आज आपको कुछ लेना हो तो इमीडिएटली आपके मुंह पे अमेजोन आता है. अगर फर्स्ट नेम नहीं आता तो सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन हमेशा अमेजोन होती है. मोस्ट ऑफ द केसेस में अमेजोन फर्स्ट हो गया है, फ्लिपकार्ट सेकंड हो गया है. बट अगर किसी का अलग भी एक्सपीरियंस है तो इट वुड बी अमंग टॉप 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स would any person is aware, and the person who is an online shopper would like to buy from these companies. Now what Amazon has done, Amazon ने आए,
कोई जल्दी नहीं थी उनको, वॉल्यूम पे प्ले करना था, कंपेटिटिव प्राइसिंग रखी, नई नई चीजें लेकर आई, अपना उन्होंने मर्केंटाइज बढ़ा रखा, बहुत करी, अपने जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने की कोशिश करी। इसलिए व्हाट दे स्टार्टेड प्रोक्यूरिंग दीज वेयर हाउसेज गुड़गांव में और बड़े बड़े एरिया पे, जहां पर से जहां से उनके ज्यादा ऑर्डर आते हैं, उसके आसपास के एरिया में दे ट्राई टू मेंटेन अ वेयर हाउस। और जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं, जब आप सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो वहां से वो कैप्चर कर रहे होते हैं कि आपकी नजर किस प्रोडक्ट पे रुक रही है, किस पेज पे आप बहुत ज्यादा देर रहे, किस प्रोडक्ट को आपने कितनी देर एनालाइज किया। तो एक पोटेंशियल बायर को आपको समझ के दे कंसीडर एज ए पोटेंशियल बायर, और वो प्रोडक्ट पहले वेयर हाउस में भेज देते हैं, राइट। द मोमेंट यू ऑर्डर, आपके पास फटाफट आ जाती है वो चीज, बिकॉज वो पोटेंशियलिटी के ऊपर काम करते हैं। और अभी तक तो सब वेयर हाउस भेज रहे थे, वेरी सून व्हाट यू विल बी सीइंग, आपके घर पे आ जाएगी वो चीज। जैसे आज आपने रात को सर्फिंग की, किसी चीज के आप बहुत देर तक देखते रहे, एंड डेटा विल ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल लर्निंग्स, डेटा विल अंडरस्टैंड कि सच में लेना चाह रहे हैं, पर किसी एक चीज के लिए रुके हुए हैं, मे बी प्राइस, मे बी एनी अदर थिंग, कुछ भी हो सकता है वो। सो साइकोलॉजी से प्ले करेंगे, आपके घर के सामने वो सामान आ जाएगा, सीधा रोबोट आएगा, रोबोट ड्रोन आएगा, बेल बजाएगा, बेल बजेगी आपकी, और आप सामान आपके सामने। ना वहां पर एज ए कस्टमर आपको अपने आप को एक वो जो कहते हैं इंपल्सिव बाइंग, और अपनी उस टेम्पटेशन से दे वांट टू प्ले ऑन दैट, कि आपके सामने जब कोई चीज आ जाए, एक टेम्पटेशन हो जाती है ना, वे देखो आप रेजिस्ट करो, डाइटिंग पे हो, रेजिस्ट कर रखा है अपने आप को आपने, कि मैं नहीं खाऊंगा कुछ मीठा, या मैं नहीं कुछ फ्राइड नहीं खाऊंगा, वट आपके लिए टेम्प्ट कर अपने आप को रोकना आसान है कंपैरेटिवली, जब वो चीज आपके सामने नहीं है। द मोमेंट इट कम इन फ्रंट ऑफ यू, वो जो टेम्पटेशन को रोकना होता है, इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। कैन यू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी? वहां पर रियल आपको अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, ओनली देन यू कैन यू कैन कंट्रोल कि आप नहीं लोगे। लेट्स से आपके पास मनी भी है, ठीक है, आप फिर भी आप एक्सप्लर्ज हो गए, किसी ड्रेस को देखो और आपको बस बहुत अच्छी लगी, इतनी जरूरत भी नहीं थी खरीदने की, बट आपको अच्छी लगी। सो अगर द मोमेंट नेक्स्ट मोमेंट वहां पे डोर पे आकर खड़ी हो जाए ड्रेस, सो मे बी इफ यू आर नॉट टाइट ऑन मनी और कोई और चीज नहीं है, तो मे बी यू विल चल अब आई गई है तो ले लेते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दे आर गोइंग टू प्ले विद योर न्यूरल थिंग्स, कि कहाँ पे इस बंदे को पसंद है, मैं इसको भेज ही देता हूँ। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उन्होंने पूरा लगा रखा है, वो पूरी ट्रैकिंग देखते हैं कि आप किस तरह के कस्टमर्स हैं, हैवी यूजर हैं, आप जनरली कितनी बाय करते हैं, क्या करते हैं, वो उस हिसाब से पूरा का पूरा आपसे सब कुछ कवर कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट कोस्टिंग। वैसे भी टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी कोस्टिंग, अब ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एक ही बार खरीदने हैं उनको कोई सैलरी बेनिफिट नहीं देने, कोई और बेनिफिट्स नहीं देने, कोई फटीग नहीं देनी, फास्ट भी काम करेंगे। उन्होंने ये शुरू कर दिया, दे हैव स्टार्टेड बाइंग ड्रोन्स। कभी भी आप YouTube पे कोई वीडियो देख सकते हैं इससे रिलेटेड। सो दे आर इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी एंड दे विल यूज दिस टेक्नोलॉजी टू टू टैप द पोटेंशियल कस्टमर्स। तो दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है। फर्स्ट इज मार्केट स्किमिंग प्राइस। मार्केट स्किमिंग प्राइसेस में एक स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे ही आपका मूवमेंट में प्रोडक्ट आता है, आप इनिशियली 1 साल में, 6 महीने में, या वट एवर इनिशियल स्टेजेस पे यू ट्राई टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, बिकॉज with the passage of time you have to reduce your price because of 2-3 reasons. First reason is that your competitors may imitate your product, imitated product आ जाएंगे, options हो जाएंगी लोगों के पास। Second, आपकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो सकती है, तो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो immediately people will not ask about your technology, ठीक है। अगर टेस्ट प्रेफरेंसेस रिलेटेड चीज है, तो एक डिजाइन कितना भी अच्छा हो, people cannot keep buying that, people wants change, तो इसलिए आपको स्किम करना पड़ता है। ओके, तो मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सेकंड है आपका मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यहाँ पर आप मैक्सिमम वॉल्यूम के ऊपर काम करते हो। आप सोचते हो कि इनिशियल अपना प्राइस कम करो, यू ट्राई टू कैप्चर द बेस, और उसके बाद जैसे व्हाट्सएप आया, फ्री में आया, आज भी फ्री है, दे ट्राई टू चार्ज मनी, पर वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला बिकॉज टेक्नोलॉजी ऐसी है। बट वो किस पे प्ले कर गए, फिर वो अपने बेस पर प्ले कर गए, उनकी वैल्यू बढ़ गई, वर्थ बढ़ गई, बिकॉज रीच बहुत है व्हाट्सएप की। तो कोई एडवर्टीजमेंट आती है, कुछ और आता है, तो और डेटा, सबसे बड़ी बात, आपका डेटा उनके पास है। आप किससे चैट कर रहे हो, कितनी देर चैट कर रहे हो, किस टाइम पे चैट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितनी बार फोन पे जा रहे हो, दे कुड प्ले विद दैट, दे कुड हैव दैट डेटा, और यही डेटा फेसबुक लेके गया। दैट्स वाई भाई एक फ्री की सर्विस के लिए, व्हाट्सएप जैसी के लिए फेसबुक इतना क्यों पे करेगा? यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। व्हाट्सएप तो आपसे कुछ नहीं ले रहा,
right? So what benefit Facebook is getting? They are getting the immense data which WhatsApp is having, right? Now pricing की कुछ additional strategies भी होती हैं. The first one is product line pricing. Now product line pricing का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपनी डिफरेंट लाइंस की एक साथ ही प्राइस करती है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें BMW कार्स हैं, उनकी अलग अलग सीरीज आती है, तो पूरी की पूरी सीरीज के बारे में वो डिसाइड करते हैं कि हमारी लो रेंज प्राइस कौन सी रहेगी, प्रोडक्ट लाइन होगी, हाई प्रीमियम कौन सी होगी. ये इस तरीके से दे ट्राई टू अपनी एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस होती है रेंज के हिसाब से, तो उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग. सेकेंड है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग. ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है कि आपको ऑप्शंस के हिसाब से आपकी प्राइसिंग होती है. फॉर एग्जांपल i5 प्रोसेसर लेना है तो डेल के लैपटॉप की कुछ और कीमत है, i7 लेना है देन कुछ और है. अगर आपको हार्ड डिस्क की मेमोरी बढ़वानी है, 256 लेनी है, 1 टेराबाइट लेनी है, 512 लेनी है, तो आपको ऑप्शंस दे दी विद अ बेस मिनिमम कि इतना तो है, उसके बाद आपकी मर्जी है, देन उसके बाद वी कैन इंक्रीज द प्राइसेस, राइट? दिस इज कॉल्ड ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग. थर्ड इज कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग. कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है कि प्रिंटर एक बार ले लिया पर उसकी कार्ट्रिज आपको लेनी है, राइट? कोई और नेटफ्लिक्स आपने वो जो स्टिक है वो ले ली फॉर एग्जांपल, पर उसकी सब्सक्रिप्शन करानी है. जैसे नेटफ्लिक्स एक बार ले लिया, ठीक है, एक तो होता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस और एक होता है कि आपको फिर उसको इनिशिएट कराना है. किंडल एक बार ले लिया पर ई बुक्स खरीदनी पड़ेंगी. सो दिस इज कॉल्ड कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग. मतलब प्रोडक्ट बीजोस कहते हैं लेट मी एंटर इन दैट जोन जहां पर लोग प्रोडक्ट खरीदने के नहीं, प्रोडक्ट यूज करने पे पैसे दे. सो किंडल इज वन ऑफ दैट थिंग दैट आपको किंडल खरीदने के तो जो पैसे देने हैं, बट आप जितना यूज करोगे यू पे एज पर यू यूज. तो कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, जैसे कार्ट्रिज आप उतनी डलेगी तभी डलेगी जितना आप ज्यादा यूज करोगे, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा. बट आप कैप्टिव हो गए. ऑल आउट में आपने खरीद ली मशीन, पर आपको तो रिफिल खरीदना ही पड़ेगा बार बार, उसके बिना उस मशीन का कोई फायदा नहीं, राइट? देन बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग. नाउ व्हाट इज दिस बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग? बहुत सारे इंडस्ट्रीज, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही होता है ये कि बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना. वो बाय प्रोडक्ट्स को अपने आप में डिस्कार्ड करना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, उसकी भी पैसे देने पड़ते हैं. और इसका एक और बेटर तरीका होता है कि आप अपने बाय प्रोडक्ट का यूज देख लें, ठीक है? अगर उसका एक यूज अच्छा मिलता है तो आप यू कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम बाय प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल काऊ का जो लोग फार्मिंग का काम करते हैं, या जो काऊ के जो पूरे गौशाला टाइप्स होते हैं, तो काऊ के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, दे कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज. गोमूत्र सबको पता है, उसका जो काओ डंग सबको पता है, उसका यूज होता है इसको फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए और बहुत सारी चीजें, मैन्योर बनाने के लिए. इसके अलावा राइस मिल में अगर आपको इफ यू नो समथिंग अबाउट राइस मिल, पैडी होती है ना, जीरी जिसे चावल बनता है, तो जो उसका ब्राउन वाला सरफेस होता है, आई डोंट नो वेदर हैव यू सीन दैट थिंग और नॉट, उससे एक ऑयल निकलता है, राइट? वो ऑयल चीप ऑयल होता है, नॉट फॉर ईटिंग पर्पस बट फॉर जैसे सोप में डल रहा है या किसी प्रोडक्ट में डलता है, सो दैट कैन बी यूज्ड. अदरवाइज दैट पर्टिकुलर वो जो छिलका होता है चावल का, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फर्दर टू बॉयल, टू यूज द जैसे मूंगफली से पीनट्स के छिलके से पीनट निकालते हैं, उसको गर्म करना पड़ता है, ओनली देन यू कैन टेक इट आउट इजीली ना. सिमिलरली जब हमें राइस निकालना होता है, राइस की उस पैडी में से उसको गर्म करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और फिर मशीन्स के थ्रू ही होता है सब कुछ काम, एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, तब वो उसमें से अलग हो जाता है. हाथ से नहीं कोई निकालता उसको, मशीन्स के थ्रू होता है, बट उसको हल्का सा बॉयल करना पड़ता है, गीला करना पड़ता है, सोक करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेकर आना पड़ता है, फिर वो निकल जाता है आराम से. सो वहां पर भी उसको एक जो प्लांट होता है, बॉयलर बोलते हैं जिसको, उस प्लांट को फ्यूल देने के लिए भी वो खुद से यूज हो जाता है, वो जो उसका बाय प्रोडक्ट है. सो सिमिलरली द कंपनीज आल्सो सी कि बाय प्रोडक्ट से अगर हमें कुछ फायदा होता है तो दे कैन आल्सो चेंज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज. वो बेनिफिट दे सकते हैं कंज्यूमर को और कंपटीशन को फाइट कर सकती हैं. देन प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस. कभी भी जाएंगे संडे का, वेडनेसडे का, आप न्यूज़पेपर में देखेंगे एक पैम्फलेट देखेंगे, 3-4 चीजें इकट्ठी बांधी होगी, कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स बांध देंगे, देन बॉडी शैम्पू के साथ बॉडी लोशन होगा, कुछ और होगा, ऐसे बॉडी का टॉयलेटरीज हो गई, कोई सोप हो गया. कई बार रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बंडल कर देते हैं, कई बार बिल्कुल अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को बंडल कर देते हैं. जैसे शैम्पू के साथ च्यवनप्राश हो गया, अगर सेम कंपनी के, फॉर एग्जांपल डाबर के साथ आप देखेंगे च्यवनप्राश के साथ हनी आपको दे देंगे, और
पेस्ट के साथ ब्रश तो कई बार देखा है आपने, इस तरीके की चीजें तो आपने यू हैव ऑब्जर्व मेनी टाइम्स। सो कुछ भी बंडल कर देते हैं तो उस तरह की बंडलिंग स्ट्रेटेजी भी वो चला देते हैं, और प्राइस बंडल से कई बार न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जाते हैं, राइट। नाउ प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है? नेक्स्ट इज आपका जो है वो है आपका डिस्काउंटिंग एंड अलाउंस प्राइसिंग। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं डिस्काउंट और अलाउंस में क्या फर्क होता है? डू यू नो, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड अलाउंस और नो? मैम डिस्काउंट तो वो हो गया जो किसी प्रोडक्ट के प्राइस पे मिल जाता है। वेरी गुड, मतलब रिडक्शन कर देते हैं प्राइस में, है ना? हाँ जी। हाँ जी। और अलाउंस क्या हुआ बेटा? अलाउंस तो सैलरी वगैरह में मिलती है। हाँ, मैन्युफैक्चरर्स भी देते हैं अलाउंस। तो डिफरेंस क्या है कि ये अलाउंस पे किया जाता है बाय मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर। अगर हम मार्केटिंग की सेंस में बात करें तो अलाउंस में पेमेंट्स मैन्युफैक्चरर की तरफ से आती है टू द रिटेलर्स, और डिस्काउंट में क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना आईफोन को अपग्रेड कराना है तो मुझे एक अलाउंस मिल गया कि ठीक है इतने कम पैसे दे देना। आर यू गेटिंग इट? इसको अलाउंस बोलते हैं। या समटाइम्स मैन्युफैक्चरर रिटेलर को कोई अलाउंस दे देता है, प्रमोशनल अलाउंस, कि आप मेरा प्रोडक्ट आगे रखो, उसके बारे में ज्यादा बात करो, यू नो, अगर मल्टी ब्रांड पे कोई काम कर रहा है तो इस तरह के अलाउंसेस भी कई बार दे देते हैं, आप मेरे प्रोडक्ट के लिए ये करो या उस तरीके से ज्यादा प्रमोट करो। कभी कभी नोटिस किए हैं कि किसी एक शॉप पे जाते हैं, समटाइम्स एक रिटेलर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा होता है, हालांकि उसने 4 प्रोडक्ट रखे होते हैं, बट हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट थिंग? यस मैम। और स्पेशली अगर आप ग्रोसरी पे जाओगे ना, कोई नई तरह की नमकीन आई होगी, कोई नई तरह का चिप्स होगा, और वो लोकल होगा, ब्रांडेड नहीं होगा, मतलब नेशनल एस्टैब्लिश ब्रांड नहीं होगा, वो उसको ज्यादा प्रमोट करेगा कि आप इसको ट्राई करो, ये ज्यादा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? यस मैम, अभी परसों ही हुआ था। मतलब वो जो नई ब्रांड सेट करते हैं तो वो रिटेलर्स को टैप इन करते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा अलाउंस दे देंगे अगर आप हमारे इतने और बेच दोगे। एक तो उसका मार्जिन है ही पर प्रोडक्ट पे, ओके, लेकिन एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है उसको कि अगर आपने इतना कर दिया, मेरे इतनी और बिकवा दी, तो मैं आपको एडिशनल कुछ परसेंटेज दूंगा। सो दिस इज कॉल्ड अलाउंस प्राइसिंग, ठीक है। अब डेफिनेटली ये भी तो एक एक्सपेंस है कंपनी का, सो द कंपनी हैज टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस इनटू माइंड व्हेन दे आर सेटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स, ओके। उसके बाद आपका आता है सेगमेंटिंग प्राइसिंग। सेगमेंटेड प्राइसिंग में अलग अलग तरह का होता है, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, और दूसरा होता है आपका व्हाट यू विल से लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग। देखो, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग में आपने अलग अलग सेगमेंट, जैसे हम एक ही प्लेन में जा रहे हैं, सेम डेस्टिनेशन है, पर बिजनेस क्लास अलग है हमारा और इकोनॉमी क्लास अलग है, सो दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेड प्राइसिंग, ठीक है। दूसरा है हमारा लोकेशन बेस्ड प्राइसिंग, जैसे सेम चीज इंडिया में अलग मिल रही है, बाहर अलग रेट की मिल रही है। एप्पल का फोन ही देख लो आप, या लैपटॉप से देख लो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो आप। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड भी कई बार होता है, आप देखेंगे दिल्ली इतना, आउटसाइड दिल्ली इतना, बिकॉज ऑफ टैक्सेस और मेनी अदर थिंग्स दे कैन दे सेट डिफरेंट प्राइसेस। हैव यू कभी देखा है, आपने ऑब्जर्व किया ब्रेड्स पे विद इन दिल्ली इतना, आउटसाइड दिल्ली इतना? पेट्रोल प्राइसेस देख सकते हैं, वो भी चेंज होते हैं, खैर वो तो टैक्सेस की वजह से चेंज होते हैं, बट लोकेशन बेस्ड हम कह सकते हैं इसको। सो लोकेशन के हिसाब से जगह की प्राइसिंग होती है। देन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है? 2 तरह का होता है। एक तो आपका होता है कि 999, 199, 149, ये तो आपको पता ही है। कस्टमर को साइकोलॉजिकली ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, अच्छा 199 थोड़ा छोटा लगता है, 149 थोड़ा छोटा लगता है, 200 या 150 थोड़ा बड़ा लगता है। एक तो दे प्ले, जैसे $99, $9, इस तरह के जो आपके स्टोर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा है रेफरेंस प्राइस। रेफरेंस प्राइसिंग क्या होता है कि जब भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को कि कम है, सस्ता है या महंगा है, तो हमारे दिमाग में एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अब वो रेफरेंस पॉइंट या तो हमारे दिमाग में कोई बेंचमार्क प्रोडक्ट होता है, हम उससे कंपेयर कर रहे होते हैं, या समटाइम्स कोई इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास कि इस तरह की चीज है, इतनी प्राइसिंग है तो इतना ही होगा, ठीक है। अभी मैं आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट लाके दे दूं जिसको कभी आपने यूज नहीं किया, या जो आपने कभी देखा नहीं, उसके लिए आपकी वो प्राइसिंग क्या होगी वो आप इवैल्यूएट करना बड़ा मुश्किल है। मैं कोई भी अचानक से कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने ले दूं जो आपने कभी ना देखा, ना कभी सुना और ना आपको पता,
क्या होता है, यूजेस क्या है, फिर भी आप उसके फीचर पे असेस करके, उसकी टेक्नोलॉजी को असेस करके यू विल ट्राई टू इवेलुएट कि इतने का, और फिर दो रिएक्शंस आ सकते हैं, इतना महंगा, और मे बी वन रिएक्शन, बस ये इतना सस्ता, यू नो। वहां पर जब कोई उसका कंपैरेटिव पॉइंट भी नहीं था, बट यू ट्राई टू असेस, रेफरेंस किया आपने कुछ उसके फीचर्स को, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइसिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, और अपने दिमाग में कुछ इमेज बना लेते हैं आप लोग कि ये इतने का होगा। स्पेशली आप कोई ड्रेस ही लेने जाए, उसके स्टाइल को देखकर या उसकी वर्क को देखकर या कुछ भी देखकर आपके मन में एक इमेज आ जाती है, इतने की तो होगी, कोई जैकेट लेने गए, कोई स्वेटर लेने गए, व्हाटएवर, और फिर यू कंपेयर, और आप उससे जो एक्चुअल प्राइस उससे कंपेयर करते हो, तो एक रेफरेंस माइंड में होता है, या तो किसी और ब्रांड का आपने देखा होगा वो रेफरेंस होगा, या उसके फीचर्स को देख के आप अपने आप से इमेज बनाकर एक प्रोडक्ट बना लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस प्राइसिंग। ये भी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर ही कवर होती है। तो जो मार्केटर्स होते हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखकर दिमाग में क्या कस्टमर क्या आएगा, वो किससे रेफर करेगा मेरे प्रोडक्ट, इसके फीचर्स को देखेगा, या कोई एग्जिस्टिंग कंपटीटर इज देयर और नॉट। तो उस तरह से होता है। कभी भी आप देखेंगे सेम सेगमेंट के दो कंपटीटर के प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और अगर है तो मैन्युफैक्चरर ट्राई टू जस्टिफाई दोज डिफरेंसेस। ऐसे नहीं होते कि कुछ भी मैंने प्रोडक्ट ले लिया, नोबडी विल बाय दैट, ओके। देन प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग तो आपको सबको ही पता है कि हमारे कॉलेज में बाहर लगा लेंगे कि आज प्रमोशनल प्राइसिंग है, आज तो मैं आपको ये प्रोडक्ट इतने का दे रहा हूँ, पर कल अगर आप शॉप पे आएंगे तो मैं इतनी का दूंगा। आप कभी भी टीवी चला के देखे, वो होम शॉप 18 और कितने सारे आ रहे होते हैं, 15 मिनट रह गए, 2 घंटा रह गए, अभी हमारा प्रमोशनल ऑफर चल रहा है, आपको ये मिल जाएगा, बट आफ्टर दैट इफ विल आस्क वी विल गिव यू दिस। बड़ी ब्रांड भी करती हैं, जैसे कहीं पर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, किसी कंट्री में कर रहे हैं, तो प्रमोशनल प्राइसिंग, जब कोई नया कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट होता है तो दे आल्सो समटाइम्स गिव प्रमोशनल प्राइसिंग। कोई नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा होता है, समटाइम्स दे गिव दिस काइंड ऑफ प्रमोशनल प्राइसिंग कि 2 महीना फ्री में कर लो, उसके बाद you will be charged. So these all are different kinds of promotional pricing. Then geography pricing again is location based, उसकी तरह ही है थोड़ा, पर इसमें ये होता है कि जैसे हमने ये थोड़ा सा वो है कि फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन प्राइसिंग, यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग, मतलब आप इसमें थोड़ा सा एक्सपोर्ट से रिलेटेड आ जाता है कि जोन के हिसाब से आप प्राइसिंग डिफरेंट कर रहे हैं, या जो एक मार्केटर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फ्रिज आपको खरीदना है, राइट, तो कंपनी कह रही है कि डिलीवरी तक आपको मिल रहा है और इंस्टॉलेशन भी फ्री मिल रहा है, तो ये एक तरीके की ज्योग्राफिकल प्राइसिंग हो गई। एक ये हो सकता है कि नहीं, हम तो सिर्फ शोरूम तक की प्राइसिंग है, उसके बाद जितना भी कॉस्ट है वो सारा आपका है। तो ये ज्योग्राफिकल प्राइसिंग के डिसीजन भी कंपनी को पहले लेने पड़ते हैं कि मेरी जो भी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो कस्टमर के इंस्टॉलेशन तक है या कस्टमर के सिर्फ शोरूम तक आने के बाइंग पे है। जैसे वैट एक्स्ट्रा, कई लोग बोल देते हैं ना ये तो प्राइस है बट वैट एक्स्ट्रा। सो समटाइम्स जब टैग लगा होता है हम सोचते हैं चीज इतने की है पर उसके ऊपर और एडिशनल मिल जाता है। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्यूटी फ्री शॉप, अगर आपने कहीं आउट ऑफ इंडिया से शॉपिंग करी हो, तो जब वो अच्छा आप ब्रांडेड खरीदते हैं तो वो आपको ड्यूटी फ्री चीजों की जैसे कुछ कई बार 5% ड्यूटी फ्री मिलती है, कुछ चीजें मिलती हैं, इफ यू नो दैट थिंग, ठीक है। तो वो आपको जब आपको एयरपोर्ट पे दिखाते हो कि ये मैंने चीज खरीदी है बिल के साथ और इस पे ड्यूटी फ्री है 5% का, तो आप उस तरह की प्राइसिंग भी अपनी चीजों की इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द नेशन ऑफ कोर्स। डायनेमिक एंड ऑनलाइन प्राइसिंग ये तो सभी को पता है, जैसे ओला उबर की प्राइसिंग है, दैट इज कम्स अंडर डायनेमिक प्राइसिंग। हर टाइम पे प्राइस चेंज हो रहे हैं और बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इकोनॉमी इट्स ऑन इट टोल। अब तो हर चीज के साथ ज्यादातर होने लगा है कि डायनेमिक एंड ऑनलाइन प्राइसिंग में प्राइस चेंज होती है बहुत जल्दी। ओके, देन इंटरनेशनल प्राइसिंग, ऑफ कोर्स जो कंट्री वाइज हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीज पॉलिसी। जैसे आपको बताया ये कि एप्पल की फोन्स की प्राइसेस बहुत अलग है कंट्री टू कंट्री। यूएस में कुछ हो रहा है क्योंकि वहां का वो लोकल मैन्युफैक्चरर है, इंडिया में सबसे ज्यादा महंगे फोन बिकते हैं उसके, दुबई में थोड़े सस्ते होते हैं फोन एप्पल के। तो कंपैरेटिवली डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्राइसिंग है। जैसे अगर आप सैमसंग वगैरह के टीवी खरीदे तो आपको इंडोनेशिया या बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग प्राइस मिलता है because of various reasons. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसी प्राइसिंग के नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। Is there any difference? Anything someone wants to say anything about this? So I can wait for a second, then we can move ahead. No, ma'am.
किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो किसी भी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी में, यू कैन प्लीज टेल मी. No, ma'am. Are you sure? Everyone is sure about that? Okay, chaliye, I think I should move ahead now if everyone is fine with that. चलिए, एक तो होती है स्ट्रेटजीज, एक क्या होता है समटाइम्स सिचुएशन अकर्स कि जब कंपनीज को रिस्पोंड करना होता है टू द प्राइस चेंजेस. अब ये प्राइस चेंजेस दो तरीके की होती है. फर्स्ट तो कंपनी इटसेल्फ इज इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस, और सेकंड होता है रिस्पॉन्डिंग टू प्राइस चेंजेस. मतलब आपके कंपटीटर ने प्राइस चेंज कर दिया, अब आप क्या करोगे. ओके, सो फर्स्ट वी टेक इनटू अकाउंट द इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस. अभी प्राइस चेंजेस दो तरीके से कर सकते हैं. मतलब एज ए कंपनी यू आर इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस. पहला है कि आप इनिशिएट करते हो अपने प्राइस कट्स. अपने आप ही आपको लगता है कि हमें प्राइस कट कर देने चाहिए, मे बी बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. जैसे एप्पल है, एप्पल एक डिसाइड करता है कि जैसे मेरा नया फोन आएगा मेरे पुराने मॉडल्स के प्राइस चेंज कर दूंगा, कट कर दूंगा अपने आप. दैट इज इररिस्पेक्टिव कि किसी और ब्रांड का फोन सस्ता है महंगा है, कोई उसको वो नहीं, बिकॉज दे आर लॉन्चिंग न्यू थिंग, दे थिंक कि अब मुझे इसके प्राइस कट कर देने चाहिए. या कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हो. कंपनीज अपने आप डिसाइड करते हैं. अब जब प्राइस चेंज को रिस्पॉन्ड करना होता है तो कई बार कोल्ड ड्रिंक की कंपनी की अपने आप ही आ जाएगा कि 2 रुपीज ऑफ, 1 रुपी ऑफ, या कोई सी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. और दूसरा होता है इनिशिएटिंग प्राइस इंक्रीज. आप अपने आप प्राइस इंक्रीज करते हो ना, चाहे आपका प्राइस इंक्रीज हो चाहे आपका प्राइस रिड्यूस हो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट दोनों टाइम अगर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और कम कर रहे हो तो पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है. दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन. देखिए, जब प्राइस इंक्रीज करते हैं और आप इन जनरल प्राइस इंक्रीज करते हैं तो अब डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में डील कर रहे हैं, किस साइकोलॉजी के पीपल को, और हु आर योर कस्टमर्स. सो लेट्स से रोलेक्स का कोई नया ब्रांड आता है, नई घड़ी आती है, या एप्पल का यूज कर रहे हैं. विद एवरी इंक्रीज, एवरी न्यू मॉडल, with every increase in model, they charge generally high price than the earlier one. इस चीज को कई बार नेगेटिव भी ले सकते हैं कि जैसे अभी आया है नया मॉडल, राइट. सो पीपल मे थिंक कि इतना कुछ एडिशनल है भी नहीं, बट दे आर बिकम ग्रीडी बिकॉज दे नो दैट एप्पल का नया है. पीपल आर सेंटी अबाउट द एप्पल प्रोडक्ट्स. पीपल आर समटाइम मैड अबाउट दीज प्रोडक्ट्स. तो पीपल विल बाय. सो कई बार वो नेगेटिव काइंड ऑफ इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड समटाइम्स पीपल कैन थिंक ओके नया मॉडल लाए, अपग्रेडेड लाए, सो डेफिनेटली दे चार्ज अप. तो ये कुछ भी हो सकता है. दैट कंपनी हैज टू असेस कि व्हाटएवर प्राइस चेंजेस आई एम इंट्रोड्यूसिंग, हाउ माय कस्टमर्स आर गोइंग टू टेक इट. ठीक है, जैसे मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है 1 रुपया पर लीटर या 2 रुपया पर लीटर, या एकदम से 15 रुपए पर लीटर बढ़ जाए तो किस तरह से इनिशिएट होगा उस चीज को. सो दैट कंपनी हैज टू टेक कॉल कि मेरे कितने प्राइस चेंजेस से. ऑफकोर्स जब प्राइस चेंज होता है और जनरली इंक्रीज होता है तो वो कंपनी के प्रॉफिट में डायरेक्टली इंक्रीज कर देता है. पर अगर वो कस्टमर उसको जेन्युइन ले, हो सकता है नेगेटिव ले और उसकी सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाए. सो दैट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कंपनी हैज टू टेक केयर. उसके बाद सिमिलरली प्राइस रिडक्शन में भी कभी कभी एक नेगेटिविटी इस तरह से आ जाती है. वी थिंक अच्छा लगता है कंपनी के प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं, सो दैट्स व्हाई कंपनी इज रिड्यूसिंग द प्राइस. तो इट्स नॉट ऑलवेज सीन एज ए फेवर. वी मे थिंक अरे अब तो ये सब खरीद लेंगे, देन आई विल नॉट बाय. मे बी ऐसे कि हो सकता है कंपनी के पास बहुत स्टॉक हो, कुछ फॉल्टी हो. सो दैट कंपनी ऑल्सो बी वेरी केयरफुल कि प्राइसेस किस तरीके से गिराया जाए. और फॉर एग्जाम्पल आज प्राइस कुछ और हुआ, थोड़े दिन बाद और कम हो गया, सो पीपल में फील चीटेड कि अरे ये तो बहुत जल्दी फोन गिरा, प्राइस गिर, सो मुझे वेट करना चाहिए था. सो समटाइम्स इट नेगेटिवली अफेक्ट द सेल दैट पीपल आर वेटिंग एवरी टाइम टू गेट इट मोर रिड्यूस्ड, to get more reduced price. Okay. Second है responding to price changes. Now company दो तरीके से प्राइस को रिस्पॉन्ड कर सकती है जो चेंज है. कैसे? या तो
ये जो आपके सामने इफ यू कैन सी द स्लाइड, हैज कंपटीटर कट प्राइस, अगर नहीं किया है होल्ड करंट प्राइस, कंटिन्यू टू मॉनिटर कंपटीटर प्राइसिंग, ठीक है। दूसरा, अगर यस किया है, देन विद लोअर प्राइस नेगेटिवली अफेक्ट योर मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट। तो अगर कंपटीटर ने प्राइस कम किया है, यू विल थिंक कि मेरे प्राइसेस, मेरी मार्केट कम हो रही है उससे। अगर तो नो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल मेंटेन योर करंट प्राइसेस और देखते रहोगे कि कंपटीटर क्या करने वाला है। बट इफ यस, that price cut in the competitors prices, product prices has affected your sale, then again you have to think ये 4 strategy, either you will also reduce the price or you will increase the value of your product, कि हम price कम नहीं कर रहे but how we are better, ठीक है। थर्ड, एग्जिस्टिंग प्राइस पर आप ज्यादा क्वालिटी देने की कोशिश करोगे, ठीक है, या फिर आप एक नई ब्रांड लॉन्च कर दोगे, मतलब अपनी एग्जिस्टिंग ब्रांड की इमेज को खराब ना करते हुए यू विल लॉन्च अ न्यू लो प्राइस फाइटर ब्रांड, कि अब कंपनी ने इतना नीचे कर दिया है, हम तो ये नहीं कर पाएंगे बट वी आर लॉन्चिंग अ न्यू ब्रांड। तो ये 4 स्ट्रेटेजी एक कंपनी कैन टेक केयर व्हेन दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द कंपिटिटर्स प्राइस चेंज, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी व्हेन यू आर टेकिंग दिस डिसीजन प्राइस चेंजेस का, देन कंपिटिटर में आल्सो थिंक अबाउट योर प्रोडक्ट इन दैट सेंस, एंड व्हेन यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द प्राइस चेंजेस, then definitely you will think about these changes. So now this is the end slide of this particular chapter. So एक और चीज आपको बतानी थी, चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता है डिफरेंट चैनल्स के अक्रॉस में, कैसे रिटेलर डिसाइड करता है कि कितना कंपनी, कितने ईच रिटेलर प्राइस रखे, वो भी एक कंपनी को डिसीजन लेने होते हैं, बिकॉज कंपनी तो सजेस्ट करती है कि इसका मार्केट प्राइस ये होना चाहिए। नो समटाइम्स रिटेलर्स को भी थोड़ा सा क्वेश्चन मिलता है कि वो कितना उसको और करना चाहे, मतलब एक क्वेश्चनिंग उनके पास भी है टू सेंस द मार्केट एंड टू सेट द प्राइसेस। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो एक मिनिमम सेल प्राइस या सजेस्टिव प्राइस सजेस्ट कर सकता है रिटेलर को, पर ऐसे कभी नहीं कर सकता कि आप मेरा प्रोडक्ट इतने प्राइस पर ही बिकेगा। सो दैट अल्टीमेटली वो जो एक वो है व्हाट यू विल से फ्रीडम है, that is left with the retailer, but of course there is some certain consideration, certain rules about that, but more or less retailer की कॉल है। पर रिटेलर को कोई भी फॉल्सिफाई प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए कि मैं मैन्युफैक्चरर रेट पे बेच रहा हूँ जबकि वो नहीं है, या एक फॉल्स कंपैरिजन दिखा देना जबकि वो नहीं है। कई बार कंपनीज करती है, एक फॉल्स कंपैरिजन दिखा देती है, या फिर उनकी कंप्यूटर प्रोग्राम दैट भी अपडेट नहीं होते, उनके स्लैब्स पे लगा होता है कि इतना रिड्यूस हो गया, पर जब कंप्यूटर में एंटर कर रहे होते हैं बिलिंग के टाइम पे तो वहां पर वो अपडेटेड नहीं होती है। सो कई बार कस्टमर अवेयर है तो दे कैन टेक ऑफ कि अरे ये तो कुछ और प्राइस था और यहाँ पर कुछ और है, बट समटाइम्स थिंग्स आर वेरी स्मॉल। लेट्स अगर आप ग्रोसरी पे जा रहे हो तो समटाइम्स यू इग्नोर दैट और समटाइम्स यू डोंट टेक नोटिस ऑफ दैट। not everyone is such aware person or such alert person कि बिल से कंपेयर करे, sometimes we don't do that. Depends upon of course situation and the product we are buying. तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कंपनीज को डिसीजन लेने होते हैं कि अक्रॉस चैनल्स उनकी प्राइसिंग क्या रहेगी। जैसे हमने पहले भी बात की, चैनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है नहीं तो दे शुड बी क्लियर कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो हमारे कौन से प्रोडक्ट है, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जा रहे हैं या पुराने प्रोडक्ट जा रहे हैं, और अगर हमारे ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं तो कौन से प्रोडक्ट जा रहे हैं। अदरवाइज पीपल विल नॉट बी द रिटेलर ऑफ योर कंपनी। अगर आपकी ऑनलाइन भी सस्ता सेम प्रोडक्ट बिक रहा है और ऑफलाइन महंगा बिक रहा है, सो मे बी no retailer is going to entertain that particular wholesale. So companies has to make some certain strategies out of that discussion also कि कौन से प्रोडक्ट कहाँ होंगे और किस एरिया में कौन सा होगा और कौन कौन से रिटेलर कौन से काइंड के प्रोडक्ट रखेंगे। मे बी समटाइम्स डिफरेंशिएट इन दैट ऑल्सो। अगर एक गली में या एक एरिया में 2 उनके हैं फ्रेंचाइजी, तो मे बी दे डिसाइड अपॉन ब्रांड, मे बी दे डिसाइड अपॉन द आर्टिकल्स, एनीथिंग। So these all decisions they have to take in advance. ठीक है? So this pricing particular topic has been finished. उसके बाद हम अपना नया piece start करेंगे, which is distribution of physical thing. So यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं आप। Any problem which you feel कि समझ नहीं आया या कोई और topic जो हम कर चुके हैं, if you want to discuss that thing, I can take any doubt of that also.